Dear students, today we learn chapter 5th, separation of substances. I am Devlal Bisnoy, your science teacher. Separation of substances. Separation process is a method that converts a mixture or chemical solution into their isolated products. Purpose of separation of substances. There are three main reasons why we need separate mixture: to remove unwanted particles, to separate useless elements from the useful ones, like in the case of separating tea leaves from tea, to obtain important substances. Some substances are more important than other in a mixture, like in the case of butter and milk. Milk is turned in order to obtain butter. And the third, to obtain pure substances, to remove and discard impurities or potentially harmful substances, like picking out small pieces of stones and other impurities from rice and wheat. सेपरेशन है जो सब्सटेंसेस का, वो एक मेथड है जिसमें हम किसी मिक्सचर या केमिकल सॉल्यूशन से उसके प्रोडक्ट्स को आइसोलेट कर देते हैं। ये क्यों नेसेसरी है करना? ये तीन रीजंस होते हैं। रिमूव अनवांटेड, यदि हमें जो अनवांटेड उसमें पार्टिकल्स है उनको अलग, जैसे अपने टी है उसको छानते हैं या किसी चीज को छान करके करते हैं, वो अनवांटेड को अलग करना होता है। ऑब्टेन्ड इंपॉर्टेंट सब्सटेंस, कई बार कुछ इंपॉर्टेंट चीज अंदर होती है उसको निकाल, जैसे मिल्क और बटर, दूध को अपने जब चर्न करके बिलो करके जब निकालते हैं मक्खन, वो इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस है। और ऑब्टेन प्योर सब्सटेंसेस, कई बार अपने प्योरिटी चाहिए, जैसे अपने घर में जो राइस है या व्हीट है या दाल वगैरह होती है, उसमें से जो कंकड़ पत्थर को पिक कर रखे अलग कर लेते हैं, वो प्योरिटी। मेथड ऑफ सेपरेशन, ये सेपरेशंस की मेथड है हैंड पिकिंग, थ्रेसिंग, विनोविंग, सीविंग, sedimentation, decantation and filtration or evaporation. First of all, hand picking, the simple process of separation lightly bigger side harmful substances or other useful substances or impurities like small pieces of stones, husk and dirt from grain or wheat, pulses and rice is called hand picking. In situation when the quantity of such impurities is not very large, hand picking turn out to be a time saving and convenient process of separating. जब हमें किसी चीज में से कोई हार्मफुल सब्सटेंसेस को निकालना हो और वो बहुत लिटिल क्वांटिटी के अंदर कम मात्रा में हो, तब अपने ये प्रोसेस अपनाते हैं और ये सबसे यूजफुल प्रोसेस है शॉर्ट टाइम के लिए। उसके बाद में थ्रेसिंग है। थ्रेसिंग इज द प्रोसेस ऑफ loosening the edible part of the crop from the scaly inedible calf that surrounds it. In this process, stalks are beaten to free the grain seeds. Sometimes threshing is done with the help of blocks. Machines are also used in large quantities. जब अपने हार्वेस्टिंग के बाद क्रॉप के अंदर से एडिबल पार्ट को अपने को अलग करना होता है उस काप में से, तब अपने इस प्रोसेस को अपनाते हैं। ये बीटन करके किया जा सकता है, ब्लॉक्स को यूज करके जिस पर बीट करते हैं उस क्रॉप को, और मशीनों के आजकल मशीन के द्वारा भी किया जाता है, जिसे जिसको कंपाइन साधारणतः अपने कहते हैं, और थ्रेसर भी काम में लिया जाता है। विनोविंग can be defined as the method of separating lighter husk particles and heavier grain seed components by blowing a current of air through them. The lighter husk particles are carried away by the wind and the grain seeds get separated. This husk can be further used as fodder for the cattle.
विनोविंग में क्या होता है कि विंड के आगे अपने जो सब्सटेंसेस है उसको डाला जाता है, तो जो लाइटर होता है काफ वगैरह, या जो स्मॉल सीड्स होते हैं, ये जो लाइटर सीड्स होती हैं, वो इस विंड में फ्लो होकर के आगे गिर जाएंगे, और जो हैवी ग्रेन्स है वो यहाँ पर इस प्रकार से जिस आप पात्र में इकट्ठा करोगे वहां पर इकट्ठा हो जाता है। नॉर्मली अपने घर पे जिसको अपने साधारण भाषा में पीसना करने बोलते हैं, वो ये प्रोसेस अपनाते हैं अपने। सीविंग, the method of separation of particles from a mixture based on difference in size of particles is known as sieving. Sieving is a very simple and time-saving process through which particles of big size can be separated from each other with the help of sieve. सीविंग छानना होता है साधारणतः अपने घरों में सभी प्रकार के, जब आप अपने करते हैं, जैसे चाय को छानना है, आटे को अपने फ्लोर को भी छान करके और गूंदा जाता है। घरों में आप जिनके घरों में अपने केटल्स है वो अपने तूड़ी या भूसा है उसको भी छानने का काम लेते हैं, तो वो एक चाल या छलनी काम लेते हैं, वो प्रोसेस है, और ये बहुत ही इजियर और टाइम सेविंग प्रोसेस है। सेडिमेंटेशन, sedimentation can be defined as the process through which dirt and other heavier particles in a mixture settle at the bottom of the vessel when water is added to it. This technique can also be used to separate two liquids which do not mix or each other and is called filtration। में क्या होता है कि एक प्रोसेस होता है कि जैसे मड वाटर है, उसके अंदर यदि कुछ देर के लिए यहाँ रख देंगे तो वो हेवी पार्टिकल्स है वो यहाँ पर नीचे बैठ जाते हैं, और उसके बाद में इसको निथार करके अलग किया जा सकता है। और डिकंडेंसन है वो है कैन बी डिफाइंड एज अ टेक्निक थ्रू विच insoluble liquid or a liquid and a solid substance are separated from, example take the case of oil and water। यदि अपने को ऑयल और वाटर को अलग करना है तो डिकंटेशन करते हैं इसमें एक, क्योंकि ऑयल और वाटर आपस में मिलते नहीं है, तो जो अपर पार्ट है उसको धीरे से छान कर अलग जगह कर लेते हैं, और नीचे जो भाग बैठ जाता है उसको अलग करते हैं। या वाटर को भी अलग करने के लिए अपने ऑयल से अलग करने के लिए एक कीप को यूज कर सकते हैं, जिसके अंदर ऑयल ऊपर रहेगा और नीचे नीचे भाग में वाटर रहेगा, उसको बाहर निकाल देंगे। फिल्ट्रेशन is the process through which smaller particles like are separated from a solution by making the solution pass through a filter. Filtration can also be applied to separate pulp and seeds from the juice. It can also used to separate cottage cheese और पनीर फ्रॉम मिल्क। ये फिल्ट्रेशन साधारणतः अपने घर पे जितने भी काम करते हैं, जैसे छानने का काम करते हैं, दूध में से पनीर निकालने के लिए, जूस में से जो पल्प है उसको बाहर निकालने के लिए, वो सारा फिल्ट्रेशन होता है। अपने इन लेबोरेटरी में क्या करते हैं कि एक फिल्टर पेपर होता है, उसको को फोल्ड करके और इस प्रकार से पनल में लगा देते हैं, और जो वाटर है वो छन करके नीचे आ जाएगा, बाकी जो पार्ट्स है वो यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। Evaporation is the process of converting liquid into gas or vapor by increasing the temperature of the liquid. This process is often used to separate salt from salt water and salty sea water। Evaporation में क्या होता है कि जब अपने सॉल्यूशन का या लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ा दिया जाता है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचने पर वेपर बन जाते हैं, वो वेपर बन के ऊपर जाकर के वापस ठंडे हो जाते हैं, और जो उसमें घुला हुआ भाग है वो नीचे, जैसे कि सी वाटर से अपने साल्ट को सेपरेट करने के लिए इस मेथड को काम में लेते हैं, साल्ट को वहां पर ला करके और एडजस्ट कर दिया जाता है फील्ड के अंदर कुछ क्यारियां बना करके, वाटर है वो कुछ एब्जॉर्ब हो जाता है, कुछ वेपर बन के ऊपर उठ जाता है और साल्ट को इकट्ठा कर लिया जाता है। कैन वाटर डिसॉल्व any amount of substances? Even though water can dissolve a number of substances and solution in it, it has a limit to how much it can dissolve. After a certain point, it stops dissolving
any more of the substances, and the substances collect at the bottom of the vessel, we say that the solution has become सैचुरेटेड। वाटर है वो लगभग सब चीजों को अपने अंदर डिसॉल्व कर जाता है, लेकिन उसकी भी एक लिमिट होती है। उस लिमिट के बाद में वो उसको आगे नहीं डिसॉल्व कर सकता, क्योंकि वो सैचुरेटेड हो जाता है। और ये पार्ट आपका अभी पूरा लेसन, इसके डायग्राम वगैरह बना लेना। ओके, थैंक